Change is the only constant. Indeed, a very wise saying. And what we can see around us in the present world is change. Change in opportunities, change in strategies, change in medium, changes in every field one can think of. Now, most of them recently have been enforced upon us due to this unwelcomed period of the pandemic, but wise are those who can change and grow with time and ensure that they can make the best use of any conditions provided. In the same line of thought, adaptations in communication strategies becomes really important for us all. And today's session will guide us on the same. I, Antriksh Rena. And I, Chaitanya Dhawan. We welcome you in today's session on fighting pandemic with effective communication strategy. A very good morning to our chairperson, Sir Professor Siddharth Mishra, our Dean Professor Dr. Charulata Singh, our esteemed speaker for the inaugural session, Mr. Satpal, Former Information Officer with Ministry of Health, our teacher coordinators, Dr. Baninder Rahi, Dr. Debarti Dhar, Dr. Manoj Kumar Singh, Dr. Priyam Ghosh, Mr. Ghulam Hussain, Ms. Bhumika Chandola, other distinguished guests, and the trainees of the Summer Internship Program 2020-21. We extend a warm welcome to all of you to our Season 2 of Online Summer Internship Program of this year. This program has been organized with the students of Semester 2 by Vivekananda School of Journalism and Mass Communication and expand their domain knowledge. This is done by creating platform for engagement with print media also. We hereby welcome our Dean, Professor Dr. Charulata Singh, for a welcome address. Professor Dr. Charulata Singh, Dean, Department of Media Studies, VIPS, is a renowned media academician with around 22 years of experience in media and media education. She has been a part of VIPS for more than 15 years. She has 8 books, 13 chapters, and around 70 paper publications to her credit. She has copyright for the concept individual social responsibility and for coining the word digiteracy. She's a resource person to various universities and has widely traveled to 21 countries for personal and professional reasons. A poetess at heart, ma'am has been awarded Iconic Women Creating Better World for All by World Women Economic Forum. We welcome you, ma'am. Thank you, Antariksh, for such kind introduction. Thank you. And as we begin, this is the first day of summer training program. So first of all, I welcome all the students, faculty members, our guest, our chairpersons, Professor Siddharth Mishra, for this session. Just to brief that, the summer training program, actually, this is organized because this is the second year which we are organizing this program, because the students need to do summer training in the industry, but due to the pandemic reasons, some of the students who have not been able to get the internship, this is the platform whereby we bring the industry to the students rather than students going to the industry. So, and the end product, whatever they would have been learning there in the industry, they would learn here and produce the newsletters at the end of this whole program. So it is a hands-on training and a learning program when we talk about. And to start with, on the topic fighting pandemic with effective communication strategies, I think when we come to health communication, it is, I believe it is a very challenging and very responsible job. And it is, because especially with the health, we need to always see that there is no misconceptions and misinformation which is spread. And we have gone through this going through this pandemic situation, and I believe that no other better person than Mr. Satpal would have been to address and to speak on this issue. He is former media consultant, Union Minister of Health, and he was involved in the strategizing for during the pandemic situations. So I think we will get the first-hand information
detailed information and in-depth information on the various aspects of effective communication and strategies on, when we talk about these situations. So we welcome you, Mr. Satpal, to Vivekananda Institute of Professional Studies, and I'm sure the students are going to benefit out of it. On behalf of the WIPS family, I'm really thankful to you. You took out time for us, and I heartily welcome you. Over to Chaitanya, please. We welcome our esteemed guest. Mr. Satpal Singh is a retired officer from Government of India. Sir has done extensive studies in commerce, law and journalism, and mass communication. He has the experience of working in Prime Minister's office and Chief Minister's office of Delhi. He also has a vast experience in all India work, including preparation, reporting, press release in Hindi and English, while serving as information officer with 3 chief ministers. Sir has also had additional charge of 2 other ministers in Delhi government. He has worked in various positions in the central government, with a total of 8 ministers, including cabinet ministers. He has held the post of additional private secretary, assistant private secretary, and consultant. He has been published weekly in editorial page in an English of Daily for a long time. Satire, his series, continues to be published in Hindi newspaper. Every week, Sir has authored 3 books in Hindi. He has worked as an assistant author on a book published in English on Delhi politics. Sir has no dearth of experience and has worked as a casual newsreader, translator for All India Radio Hindi News for more than 3 decades. Still continuing, he has also done news translation work in Doordarshan and also in Press Information Office. He is founder president of India, Chetna India. We I would welcome you, request, sir. yeah, I would request Mr. Satpal to please begin with the session. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार। आज का विषय, जैसा कि आप बता रहे हैं, चुनौतीपूर्ण है। विषय भी चुनौतीपूर्ण है और जब ये स्थिति सामने आई वो भी चुनौतीपूर्ण थी। चुनौतियों का सामना करते करते हम इतने परिपक्व हो गए, इतने अभ्यस्त हो गए कि हमें कोई चुनौती नजर नहीं आई। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना का सबसे पहले जो नामकरण हुआ वो था SARS-CoV-2। उसके बाद इसको कोविड-19 का नाम दिया गया। हिंदुस्तान में लोग इसे ज्यादा कोरोना कहते हैं, कोविड कम कहते हैं। बोलचाल की भाषा जो बन गई है उसे बदलना कठिन हो जाता है। आम आदमी आपको कोरोना कहता मिलेगा। अब मैं बात करूं कि कोरोना का या कोविड का सबसे पहला मामला भारत में कब आया। शायद एक मेडिकल स्टूडेंट वो यहां पहुंची और हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में कोविड का प्रवेश हुआ। उसका सहज हिंदुस्तान में आना भले ही सहज रहा हो, लेकिन सरकार के लिए, व्यवस्था के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि भारत सरकार ने ये सोचा कि जो भी कोरोना का मरीज सामने आएगा उसके कॉन्टेक्स्ट का पता लगाना चाहिए। आप कहेंगे कॉन्टेक्स्ट का पता लगाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ये है कि उसके कॉन्टेक्ट में जितने लोग आए वो भी तो कैरियर हो सकते हैं वायरस के। इसलिए उस लड़की के कॉन्टेक्ट्स का पता लगाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी कि 174 कॉन्टेक्ट्स उसके पता लगाए गए। कहाँ, किस ऑटो में बैठी, किस टैक्सी में बैठी, जिस प्लेन में बैठी, उसके आसपास कौन थे, किस किस से उसने बात की, उनका भी जानकारी ली गई, उन सब की, उनके भी जांच कराई गई और उनमें से जो संक्रमित नहीं निकले वो तो मुक्त हो गए
बाकी सभी को जांच की निगरानी में रखा गया। ऐसे ही कोरोना के प्रत्येक मामले के कॉन्टेक्ट्स का पता लगाया गया और कॉन्टेक्ट्स की सूची में एक मामले में तो 250 कॉन्टेक्ट्स का पता लगा और उन सब की जांच की गई। मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना से लोग भयभीत बहुत हुए और भयभीत होना था क्योंकि ये विश्वव्यापी आपदा बन गई, त्रासदी बन गई और यकायक लोग इससे प्रभावित होने लगे, संक्रमित होने लगे। लेकिन कोरोना को हल्के में लेने वाले भी भारत में बहुत लोग थे, बहुत लोग हैं, अब भी हैं और अब भी वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कोरोना तेरी ऐसी की तैसी, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं है कि कोरोना क्या चीज है और कोरोना क्या नुकसान कर सकता है। कोरोना में इतनी कुव्वत है कि वो सीधे जाके लंग्स पे अटैक करती है, लंग्स पे अटैक करता है और वो घातक स्थिति में पहुंचा देती है। लेकिन आज की तिथि में कुछ दिन पहले एक ऐसे डॉक्टर भी मेरे सामने आए जो कहने लगे कोरोना के बचाव में अगर मास्क पहनोगे तो मृत्यु हो जाएगी आपकी। अब बताइए, हमारा देश विविधताओं का देश है, लेकिन विचित्र प्रकार के व्यक्तियों की विविधता वाला देश भी है। उन्होंने कहा ये 2 गज की दूरी की क्या जरूरत है, कोई इससे संक्रमण होना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुंह ढक के रखना, हाथ नहीं मिलाना और जो भी सावधानियां, ये सब बेवकूफी वाली बात है। बहरहाल हमारे देश में हर एक को कहने की, सुनने की, बोलने की स्वतंत्रता है, जिसका खामियाजा हमारा देश कई बार भुगतता है। लेकिन जब जब हमने लापरवाही की और सावधानियों को बरतने की अनदेखी की, हमारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आई और कई स्थानों पर सुपर स्प्रेडर बन के कोरोना सामने आई। अब आप देखिए, भारत में जितने मामले सामने आते हैं उनमें से आधे से ज्यादा या आधे केरल के होते हैं। ये मुसीबत क्यों बनी कि राज्य सरकारें, कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को देखते हुए कुछ सहूलियत देते हैं एक विशेष वर्ग को, ताकि उनका मामला, उनका बेस पुख्ता बना रहे, मजबूत बना रहे और चुनाव में उन्हें कोई मुसीबत ना हो। तो इस तरह उन्हें छूट सी दी, ऐसी छूट दी कि कोरोना पर से नियंत्रण छूट गया, कोरोना अनियंत्रित हो गया और मामले जहां एक सप्ताह पहले 11,000 और 17,000 थे, वो मामले बढ़कर 22,000 हो गए। आज की स्थिति यह है कि हमारे देश में कुल मामले 3,17,00,000 कुल पहले दिन से मिला के अब तक 3,17,25,396 हैं। पिछले 24 घंटों में केवल पे मैं जोर दे रहा हूं, क्योंकि पिछले सप्ताह 40, 42, 45,000 मामले आते रहे और कल केवल 30,002 मामले आए। आप इसका कारण पूछना चाहेंगे। इसका कारण ये है कि रविवार को अधिकांश जांच केंद्र है वो काम नहीं करते, इसलिए मामले कम आते हैं, क्योंकि जितनी जांच होती है उसी में से तो मामलों का पता लगे। अगर समुद्र में पानी नहीं होगा तो मछली नहीं मिलेगी,
अब उस दिन समुद्र बंद होता है तो मछली नहीं मिलती, सेंटर बंद होते हैं तो मामले कम मिलते हैं। तो मैं बता रहा था कि अब तक पिछले 24 घंटे में मैंने बताया 30,002 मामले आए, वो रविवार था। रिकवर हुए कितने लोग? हमें इस बात का फायदा मिला कि मामले ज्यादा आते गए तो लोग तंदुरुस्त भी और ठीक होकर भी अपने घर लौटते गए। 3.09 करोड़ मामले लोग स्वस्थ हुए और मृत्यु का हमें अफसोस है। सभी को सुन के दुख होता है, आपको सुन के दुख होगा, मुझे बताते हुए दुख होगा कि 4.25 लाख मरीजों की मौत हुई। अगर विश्व की बात करें, विश्व में इस वक्त कुल मामले 19,96,11,794 हैं और मौतें कितनी हुई हैं? 42,49,322। विश्व के कई देशों में तो ये स्थिति बन गई, थोड़ी वो स्थिति हमारे यहां भी बनी थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन कुछ देशों में तो ऐसी स्थिति बन गई कि कब्रिस्तान की जगह नहीं बची, दफनाने वालों के लिए दफनाने वाला कोई परिवार का सदस्य नहीं बचा। बहुत ही भयानक भयावह स्थिति बनी। और जो रिकवर हुए विश्व स्तर पर, विश्व में 194 देशों का डेटा लिया गया है। 18,01,01,722। तो देखिए, और हमारे यहां जितने एक्टिव केस हैं वो टोटल केस के महज 1.29% है। और अगर मैं बात करूं रिकवरी दर की और मृत्यु दर की, हमारे यहां मृत्यु दर इस समय 1.34% है और रिकवरी दर 97.37% है। मैं एक चीज और रेखांकित करना चाहता हूं कि हमारी मृत्यु दर विश्व में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में टॉप पर थी और इसी तरह हम तो 98% तक रिकवरी दर पे पहुंचे थे। पहली लहर के बाद दूसरी लहर बड़ा खतरा लेकर आई। लोग परेशान भी हुए, कुछ बाधाएं भी आई, लेकिन सरकार ने जो व्यवस्थित, श्रेणीकृत, अग्रसक्रिय और नियोजित स्टेप लिए थे, उनके कारण स्थिति संभाली जा सकी। लोकतांत्रिक देश में हाहाकार होना स्वाभाविक है, आप इसको टाल नहीं सकते, लेकिन हाहाकार हुआ, उसका कुछ इतना मारामारी वाला असर नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए डैशबोर्ड बना रखा है। जहां तक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की बात कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि ये हॉट इश्यू था, तमाम मीडिया इसके लिए स्वयं इच्छुक था इसको कवर करने के लिए, तो हम इनवाइट भेजें या ना भेजें, मीडिया की भीड़ तो आ ही जाती थी। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि वो सजग थे। आम जनता को के लिए देश में क्या मिल रही है, कितनी दिक्कतें हैं और किस प्रकार दिक्कतें पूरी की जा रही हैं। सरकार की ओर से प्रतिदिन प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती थी दोनों भाषाओं में, और
विज्ञप्ति भेजने के बाद बीट के होते थे। सतपाल जी, 1 मिनट आपको रोकूंगा। आपका ना जी, जी। बैंडविड्थ लो है, आप वीडियो अपना ऑफ करके बोलिए, तो वरना आपकी आवाज कट रही है। बैंडविड्थ वीडियो कम है। ऑफ करूं, म्यूट करूं मैं? नहीं, वीडियो ऑफ कर ले और वीडियो ऑफ कर दूं? हाँ, ये स्टॉप वीडियो आ गया, ये लीजिए। हाँ, अब बोलिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे अधिकारी मीडिया वालों से, रोज 2 प्रेस विज्ञप्ति आप देते थे। हाँ, तो हम लोग फिर उसको फॉलो भी किया करते थे। और तीसरी बात यह है कि नेशनल मीडिया सेंटर में यदा कदा और नियमित रूप से प्रेस ब्रीफिंग हुआ करती थी, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी ब्रीफ करते रहे। उसके बाद जब मंत्रालय में नए सचिव आए, उन्होंने ये ब्रीफिंग की शुरुआत की। लेकिन बाद में फिर ये दायित्व एक बार फिर संयुक्त सचिव के पास आ गया। हाँ, मैं अटेंशन चाहूंगा कि बाद में एक बार फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी ब्रीफिंग करने लगे। इस ब्रीफिंग में मीडिया को इतनी खबरें मिलती थी कि उनके लिए स्थान जुटा पाना मुश्किल होता था। और प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी और जो प्रतिदिन निर्णय लिए जाते थे उसकी जानकारी दी जाती थी। तो कई बार तो हमें लगता था भाई हम तो बिना मतलब के ही प्रेस रिलीज भेजे जा रहे हैं, क्योंकि सारी बात तो प्रेस ब्रीफिंग में हो गई। लेकिन फिर मीडिया वाले कहते थे भाई हमें रिटर्न फॉर्म में मिल जाए तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। तो हम तो करते ही थे अपना काम और करते रहे। मैं पहले भी लापरवाही की बात कर रहा था। अब आप देखिए कि लापरवाही कैसी हुई। एक केंद्रीय मंत्री जी ने भाभी जी को सामने लाए और भाभी जी कह लेंगे ये पापड़ बना है, इस पापड़ से आपका कोरोना समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश की एक मंत्री ने कहा मैं रोज गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ, रोज गोमूत्र का सेवन करती हूँ, तो मुझे तो कोरोना हो ही नहीं सकता। ये मालूम नहीं उन्हें हुआ या नहीं हुआ। फिर कुंभ को लेकर धार्मिक आस्थाएं ज्वार पर थी और एक राज्य सरकार ने कुंभ की भीड़ को बहुत सहजता से लिया और उस भीड़ के कारण इतना संक्रमण हुआ। और साथ में उन्होंने एक चालाकी और की, उन्होंने कहा हमने सबका टेस्ट करा लिया और टेस्ट ऐसी जगह से हुआ जहां टेस्ट किया नहीं गया और ओके रिपोर्ट दी जाती रही। 2 ऐसे केंद्र संदिग्ध इस वक्त हैं जिनके ऊपर मामला चल रहा है। तो दोस्तों, और मास्क क्यों ना पहने, मास्क मेरा अपना सुरक्षा कवच है। मास्क से हम खुद को बचाते हैं, दूसरों को भी बचाते हैं, बाकी लोगों की भी हिफाजत होती है। अब आपको बताता हूं कि कोरोना पर निगरानी रखने के लिए और समय समय पर निर्णय लेने, समय समय पर महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया। उसकी 29 बैठकें हुई जिसमें मैं सभी में शामिल था और बहुत शिद्दत के साथ बैठकों में चर्चा की जाती थी और निर्णय लिए जाते थे। और जब वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ तो मेरे कमरे के बगल में एक वार रूम बना। वार रूम का माना ये नहीं कि वहां गोलियां चल रही थी, वहां आदम कद से भी बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगे हुए थे। उसका फायदा यह था कि देश भर में जहां जिसको वैक्सीन दी जा रही है पूरा उस पे 1 by 1 आता जा रहा था और किसी से
बात करनी हो तो हम उसी वीडियो से बात भी कर सकते थे। तो वार रूम अब भी काम कर रहा है, हालांकि वैक्सीन का काम सुचारू हो गया। वैक्सीन की कहानी आपको पता है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के वैज्ञानिक जो 15 साल तक अभी कई वैक्सीन बना नहीं साहब पाए, उन्होंने 8 महीने में कोरोना का वैक्सीन बना के दिखा दिया। और इस समय देश में 3 वैक्सीन का उपयोग हो रहा है। एक भारत टेक की कोवैक्सीन, जो कि फुल्ली मेड इन इंडिया है, ये डेवलप भी यहीं हुई है, इसका उत्पादन भी यहीं हो रहा है, इसका निर्माण नहीं कहूंगा, उत्पादन भी यहीं हो रहा है। और दूसरी कोविशील्ड, ये ऑक्सफोर्ड की है, और लेकिन इसको भी भारत में बनाया जा रहा है, इसलिए मेड इन इंडिया है, पूरी तरह मेड इन इंडिया नहीं है। और तीसरा है रूस का स्पुतनिक 5। रूस ने स्पुतनिक नाम देके अपने अंतरिक्ष काल की सफलता को याद किया। ये जो वैक्सीन है केवल प्राइवेट फैसिलिटीज में दी जा रही है, और जो दूसरी है दोनों, वो बाकी सब स्थानों पर दी जा रही है। लेकिन दोनों वैक्सीन का 75% भाग गवर्नमेंट फैसिलिटीज में आ रहा है और 25% प्राइवेट फैसिलिटीज में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 जनवरी को प्रधानमंत्री 16 जनवरी शायद, हाँ 16 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। फर्स्ट स्टेप पर हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को अवसर दिया गया, क्योंकि वो लोग मरीजों के करीब रहे, उस दायरे में रहे जहां संक्रमण की 100% तो नहीं 80% आशंका रहती है, लेकिन उन्होंने मरीजों का उपचार भी किया और काफी लोग सुरक्षित भी रहे, इसलिए उनको अवसर दिया गया। दूसरा स्टेप आया जब 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या को अवसर दिया गया, लेकिन इसके साथ एक एनक्लोजर और जोड़ा गया। वो एनक्लोजर था 45 वर्ष से अधिक आयु के वे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिन्हें और बीमारियां भी हैं। और उसके बाद तीसरा स्टेप जब आया तो 45 साल से संख्या आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन का दिया गया। और चौथे स्टेप में हमारी यंगर जनरेशन के लिए 18+ एज ग्रुप को, 18 से 47 वर्ष तक की आयु वर्ग को वैक्सीन का मौका दिया गया। अब कहा जा रहा है कि अगले महीने से अपने बचपन को सुरक्षित रखने के लिए, देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए 18 वर्ष से और 12 वर्ष के बीच की युवा या लड़कपन वाली आयु को भी वैक्सीन दी जाएगी। उम्मीद है ये काम जल्दी होगा। वैक्सीन के बारे में भी आपको पता है, काफी भ्रम फैलाए गए। एक वर्ग ने कहा कि इसमें उनके लिए आपत्तिजनक एक पशु का सीरम है, उन्होंने कहा हम इंजेक्शन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमें नहीं लगवाना।
कुछ ये तो शरीर को नष्ट कर देगा, लेकिन धीरे धीरे ये भ्रांतियां, भांति भांति की भ्रांतियां हुई और वैक्सीन का काम आगे बढ़ने लगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने पूरी का टीका लगा दिया है, लेकिन इसमें भी भ्रम की बात है। पूरे 1 करोड़ लोगों को दोनों टीके नहीं लगे, दोनों वैक्सीन नहीं लगे। 74 लाख लोगों को पहली डोज दी गई है और 26 लाख लोगों को दूसरी डोज दी गई है। तो कहें तो 74, केवल 26 लाख लोगों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है। बहरहाल राज्य सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के लिए और अपने दमखम को साबित करने के लिए ऐसे दावे करती हैं, इसकी हमें चर्चा। अब मैं आपको बता दूं कि कितने वैक्सीन आज तक लग गए हैं। विश्व में 6 अरब लोगों का टीकाकरण हो गया है और इंडिया में 33 करोड़ 78 लाख 587 लोगों का सकता हूं कि 10% वो पूरी तरह वैक्सीन, दोनों वैक्सीन लगवाने वाली श्रेणी में आ गई है। ये संख्या है 10 करोड़ 43 लाख 22,336 और फर्स्ट डोज वाले हैं 26 करोड़ 53 लाख 32,484। अब सरकार चाहती है कि इस वर्ष के अंत तक जो पात्र जनसंख्या है सभी को वैक्सीन लग जाए, दोनों वैक्सीन लग जाए। तो लिए बकिया महीनों में या इसी महीने से हमें हर महीने हर टीकाकरण करना होगा। अब सरकार को उम्मीद है कि स्पुतनिक का उत्पादन बढ़ेगा। स्पुतनिक का उत्पादन देश में हो रहा है और अमेरिका भी कुछ वैक्सीन देने वाला है। कई और देशों से भी यह गारंटी मिली है, क्योंकि ये सब कुछ आदान प्रदान के हिसाब से होता है। जब भारत ने कोरोना के समय दवाओं का, विभिन्न देशों को दवाएं फ्री दी और कई उपकरण, और ईरान या इराक जैसे देश में एक इतनी बड़ी लैब जाके वहां खड़ी कर दी, और वो भी एक उपहार के रूप में, तो स्वाभाविक है कि भारत को भी ऐसी सहायता मिल सकती है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और तो और पाकिस्तान को भी मुफ्त में कुछ ना कुछ वैक्सीन दिए, बड़ी मात्रा में वैक्सीन दिए, श्रीलंका को दिए। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कई देश ऐसे हैं जो दावा करते थे कि हमने अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगा दी है। आज वो मुसीबत में आ गए हैं। अमेरिका में 2 महीने पहले नए राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि आज से मैं मास्क उतार रहा हूं और हमारे देश में अब किसी को मास्क डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज वहां दिन में रोज प्रतिदिन 1 लाख मामले सामने आ रहे हैं और अब वहां मास्क की बंदिश लगा दी गई है और
कई और बंदिशें शुरू की जा रही हैं। इसी तरह इस्राइल ने कि हमने सभी को वैक्सीन लगा दी है, लेकिन आज वहां इतना तगड़ा लॉकडाउन लगा है और मास्क लगाने की जरूरत पड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जब लॉकडाउन लगा तो लोग सड़कों पे आ गए उसके विरोध में। उन्होंने कहा ये हमारी आजादी पे प्रतिबंध है। हमारे देश में भी लोग भले ही उसमें कुछ आधार हो या ना हो, कहानी जरूर बना देते थे। तो वहां एक आधे देश और भी ऐसा है जहां लॉकडाउन का विरोध किया जा रहा है, लेकिन भारत में स्थिति अब सुधरने की उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद एक सहारा भी होती है और उससे विश्वास बना रहता है कि आगे कुछ काम हो जाएगा, आगे कुछ गाड़ी चलेगी। कोरोना के पहली लहर के दौरान एक ऐसी स्थिति भी आई जब परिवारजनों ने सोचा कि हमारे मरीजों की, हमारे रोगियों की देखभाल नहीं हो रही, कोई उन्हें देख नहीं रहा, वो तड़प रहे हैं, तो उन्होंने डॉक्टरों को पीटना, मारना, उन्हें उत्पीड़ित करना, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और कई मामलों में और वो कठिन स्थिति में पहुंच गए, जटिल स्थिति में पहुंच गए। तो सरकार ने एक ऐसे कानून का संशोधन जो 1897 में बना था, एपिडेमिक एक्ट 1897 का संशोधन किया गया। पहले इसके लिए ऑर्डिनेंस निकाला गया, फिर ऑर्डिनेंस के बाद संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित किया और वो कानून बन गया। तो इसमें कुछ ऐसा रहा कि डॉक्टरों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए कदम उठाए गए, उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए और डॉक्टरों को घायल होने, गंभीर रूप से घायल होने और बहुत विपरीत स्थिति में हालात पहुंचने पर सरकार ने एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवर दिया 50 लाख रुपए का। और ये कवर, इस कवर के लिए डॉक्टरों को और हेल्थ केयर वर्कर्स को कुछ प्रीमियम नहीं देना पड़ा। इसका प्रीमियम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से दिया गया। इस तरह 22.12 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स का फ्री इंश्योरेंस किया गया। और जो हिंसा में शामिल या दुर्व्यवहार में शामिल होता था उसे 6 महीने से 7 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। और ये आरोप जो डॉक्टरों में ये विश्वास, कोरोना काल हमारे लिए आपदा में अवसर का काल साबित हुआ। जब कोरोना आया देश में, जब उसने दस्तक दी तो देश भर में केवल कोरोना की जांच के लिए एक लैब हुआ करती थी पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी।
और आज की स्थिति में, आज की डेट में 2700 लैब हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री केयर फंड में से 600-700 लैब और भी बनाई जा रही हैं। आज तक कुल जांच हो गई हैं 46,82,16,510 और पिछले 24 घंटे में कितने सैंपल की जांच की गई? 17 कोरोना की जांच के लिए जो नमूने होते थे अमेरिका में भेजा करते थे। अगर आज ये स्थिति होती तो हम तो ये भी तय नहीं कर सकते कि किसको कोरोना हो गया या नहीं हुआ। इन केंद्रों में आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है, जिसे हम लोग गोल्ड टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसके नतीजे एक्यूरेट होते हैं। और दूसरा रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। कोरोना काल में, कोरोना की शुरुआत में सरकार के पास इतने बिस्तर नहीं थे, इतने केंद्र नहीं थे, तो हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड सेंटर और डेडिकेटेड केयर सेंटर बनाए, जिनकी कुल संख्या 16,000 से ज्यादा है। इनमें जो बेड्स हैं, 21 लाख से ज्यादा बेड हैं। उन बेड्स में आइसोलेशन बेड है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, आईसीयू बेड है, वेंटिलेटर बेड है। जब कोरोना हुआ तो हमारे पास पीपीई किट्स नहीं थी, क्योंकि पीपीई किट्स हम बना नहीं सकते थे। पीपीई किट्स का जो कपड़ा था वो चीन से आता था। और इसी तरह N95 मास्क नहीं थे बड़ी संख्या में। तो पीपीई किट्स के मामले में विदेश व्यापार विभाग और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने मिलकर पीपीई किट्स के लिए कपड़े उपलब्ध कराए या उन्हें यहां विकसित किया किसी तरह। और हमारे सामने 50 मैन्युफैक्चरर आ गए जिन्होंने पीपीई किट बनाना शुरू किया। पीपीई किट अब इतनी संख्या में बन रहे हैं, हम अपने इस्तेमाल के बाद इन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और N95 मास्क बनाने का काम, उसके लिए भी मैन्युफैक्चरर सामने आए। N95 मास्क बनाना एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत बनता है, जबकि आम मास्क लुधियाना के जितने भी हौजरी वाले थे उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। उनका काम ठप था तो उनका काम शुरू हो गया। अब मैं आपके पास ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर आता हूं। कुछ महीने पहले ऑक्सीजन को लेकर ऐसी स्थिति बनाई जा रही थी कि ऑक्सीजन नहीं है और लोग मर रहे हैं। कुछ मौतें तो हुई, लेकिन हमारा संघीय ढांचा है और स्वास्थ्य स्टेट का सब्जेक्ट है। जो डेटा है वो राज्य सरकार से आता है। राज्य सरकार ने डेटा नहीं दिया तो सरकार को कहना पड़ा केंद्र सरकार को कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। तो लापरवाही कई स्तर पर होती है, सरकार के स्तर पर भी होती है और आदमी के स्तर पर भी होती है, नागरिक के स्तर पर भी होती है और संस्थाओं के स्तर पर भी होती है। ये लापरवाही थी। तो ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो PSA, प्रेशर स्विंग एडोमिस्टिक समथिंग लाइक दैट प्लांट लगाए गए, जिसमें 1 मिनट में 6000 लीटर
ऑक्सीजन सप्लाई करने की क्षमता है। ये प्लांट हॉस्पिटल्स के भीतर लगाए गए। दिल्ली में जो केंद्र सरकार के हॉस्पिटल थे उनमें सबसे पहले लगाए गए। एम्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग और एम्स झज्जर, इन अस्पतालों में लगाए गए। अब लगभग 700 प्लांट विभिन्न शहरों में काम कर रहे हैं, विभिन्न अस्पतालों में काम कर रहे हैं। और सरकार ने जब ऑक्सीजन की कमी की बात आई तो ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को जो मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं, उसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से बुलवाकर अस्पतालों को डिलीवरी कराई। मकसद ये था कि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। लेकिन सबसे विचित्र स्थिति ये रही कि अस्पतालों ने भी लोगों को भयभीत किया कि हमारे पास 10 मिनट का ऑक्सीजन का कोटा है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। तो इस तरह लोग भयभीत हो गए और ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूमते दिखाई दिए। ये अप्रिय स्थिति थी, लेकिन भगवान ने सरकार को शक्ति दी और इससे निपटा जा सका। सरकार के अंदर बराबर ऐसी बैठकें भी हुई कि जिन राज्यों में कोरोना की वृद्धि दर असामान्य थी, 10% से ज्यादा थी, उनके मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठकें होती रही। इन बैठकों में विचार विमर्श हुआ, परिणाम भी अच्छे निकले। अभी हाल ही में इस मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद एक बैठक हुई 10 राज्यों की। ये राज्य हैं केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र और मणिपुर। इन राज्यों में कोरोना की वृद्धि दर 10% से ज्यादा है। इसमें विचार विमर्श किया गया और राज्यों से कहा गया कि वो क्राउड मैनेजमेंट का काम करें, लोगों को क्राउड से बचने की सलाह दें और टेस्टिंग बढ़ाएं, होम आइसोलेशन वालों का मॉनिटरिंग करें और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पीएसए प्लांट्स लगवाएं। ऐसी मीटिंग्स लगभग हर तीसरे दिन केंद्र सरकार आयोजित करता था ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके। मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने वैक्सीन के काम को सुचारू बनाने के लिए एक वेब पोर्टल कोविन बनाया। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का पोर्टल है और वही इसे ऑपरेट करता है। इसमें बुकिंग स्लॉट, आपके नजदीक कौन कौन से स्थान पर वैक्सीन की उपलब्धता है उसके लिए बुकिंग की जाती है और ये साइट देश की 11 भाषाओं में काम कर रही है। अभी हाल ही में एक सीरो सर्वे किया गया देश भर में, जिसमें ये देखा जाता है कि लोगों में एंटीबॉडी कितनी है। एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने का काम करती है और अगर एंटीबॉडी पर्याप्त हो तो वो कोरोना को परास्त कर सकती है। मध्य प्रदेश में 79%, राजस्थान में 76%,
महाराष्ट्र में 56%, और केरल में सबसे अधिक 44%। तो केरल इसी वजह से वो भुगत रहा है। अब हमारे यहाँ पारदर्शिता है, लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोकशाही है, तानाशाही नहीं है। जहां तानाशाही है वहां तो वो आंकड़े भी स्पष्ट नहीं करते। उन्होंने आज तक ये भी नहीं बताया कि उनके देश से कोरोना कैसे फैला। हालांकि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप इतनी धमकियां देते रहे, और अब नए राष्ट्रपति बाइडेन भी इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। कुछ देश में ऐसे स्थान हैं जहां लोगों ने अपने प्रयासों से कोरोना को कोसों दूर रखा है। दिल्ली में मुंडका के नजदीक एक ऐसा गांव है जहां उन्होंने अपने गांव वासी किसी आदमी को बाहर नहीं निकलने दिया और किसी बाहर वाले को अंदर नहीं आने दिया। और इसी तरह हिमाचल में 2 गांव हैं जहां वो ट्राइबल गांव है, उन्होंने यही किया। वैक्सीन की बात हो रही थी ना, तो अमेरिका में वैक्सीन लगाने पर, 1 डोज लेने पर वो $100 का नकद इंसेंटिव दे रहे हैं, और ब्रिटेन में परचेज वाउचर दिए जा रहे हैं। हमें लोकशाही तानाशाही की बात कर रहा था। अब तानाशाही में एक देश ऐसा है जिसे नॉर्थ कोरिया कहते हैं, वहां भी आज तक कोई कोरोना का मामला नहीं हुआ। कहते हैं कि वहां के सर्वसंपन्न व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को, कोरोना वाले, संक्रमण वाले को देश के भीतर नहीं आने दिया। यदि कोई गलती से आ भी गया तो उसे एयरपोर्ट पे गोली मार दी जाती थी। ये कितनी बात सही है या कितनी गलत है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अगर एहतियात बरती जाए, वाजिब स्थिति तक एहतियात बरती जाए, तो कोरोना से बचा जा सकता है। कोरोना अपने आप किसी के घर नहीं आता, किसी के पास नहीं जाता। कोरोना स्वाभिमानी है, उसमें बहुत स्वाभिमान है। यदि आप मास्क को सही तरीके से लगाकर रखेंगे, सही तरीके से पहनेंगे, अपना मुंह नाक पूरी तरह ढककर रखेंगे और हाथ से, उंगलियों से आंखों को और नाक को नहीं छुएंगे, तो आपको कोरोना कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। आप 2 गज की दूरी रखेंगे, हाथ मिलाने से संकोच करेंगे या हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ मिलाने के बजाय भारतीय परंपरा के अनुसार नमस्कार करेंगे, तो आप कोरोना से बच जाएंगे। गले मिलेंगे तो कोरोना की जकड़ में आ जाएंगे। तो इसलिए ये सावधानियां आपको बरतनी है। और मेरी तरफ से तो काफी कुछ हो गया। कुछ आप और जानना चाहें तो बताइए। सतपाल जी, आपके लिए प्रश्न अब काफी है, आपने बहुत सारी बातें रखी हैं, प्रश्न बहुत ज्यादा है आपके लिए। प्रश्न का उत्तर देंगे। सरकार ने अपनी बात कह ली, अब जरा जनता की बात सुन लीजिए।
करें क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करें? जी 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 जी। संख्या आ गई आपकी? पहले तो शुरू नहीं हो रहा था। ये who is handling question answers? Sir, I guess, we're unable to get in touch with the students who are comparing, so I can take up question and answer round if You that's take not a it up, problem. no? Yes. So, sir, ma'am, Antariksh don't have the rights. Like he's saying co-host bana do. okay. So we're getting in some technical glitch. Yes, he is co-host. Antariksh, you are the co-host. Please go ahead. I'd like to apologize for the delay. I couldn't actually switch it on because I was not the co-host. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. Am I audible? Yes. I was saying I apologize for the delay. We'll move on to the question answer round. As sir said, thank you so much for the address, sir. It was detailed and a descriptive analysis as to what goes behind the scenes, and what we see are just those numbers and stats. What you just told us was everything from day one to how we're actually coping with this biggest pandemic of the century. So moving on to the question answers, I have some questions with me right now. So the first question goes like, religion has been a key factor in communal politics became an issue in putting and lifting COVID restrictions by different states. How tendency countered by the center? What measures were taken by the government for the same? मैंने ही सतपाल जी, जी मैंने ही ये बात कही है और मुझे मालूम था कि ये सवाल मेरे ऊपर आएगा ही। जहां तक कम्युनल आधार पर नीतियां बनाने की बात है, मेरे हिसाब से भारत शायद अग्रणी देशों में एक होगा, क्योंकि यहाँ की राजनीति जो है ना, वो जात और पात पे और धर्म और मजहब पर चलती है। जैसा कि मैंने कहा कि हेल्थ, स्वास्थ्य स्टेट सब्जेक्ट है और कुछ राज्य सरकारें बहुमत में भी इसी वजह से आई हैं क्योंकि उन्होंने एक मजहब का, एक धर्म का ध्रुवीकरण किया और बल्क में वोट ले लिए। तो केंद्र सरकार की तरफ से तो एक गाइडलाइन जाती थी, भैया इसमें आप संयम बरतिए, ऐसा मत कीजिए। अब हाल ही में देखिए, जब कावड़ की बात हुई तो उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार दोनों आमादा थे कि कावड़ यात्रा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सद्भाव वाली पार्टी की सरकारें थी, तो केंद्र सरकार ने अपने प्रभाव का, अपने गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल करके कावड़ यात्रा को तो समाप्त करा दिया। लेकिन कुंभ के समय उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री वो यही कहने लगे कि नहीं, इससे कोई संक्रमण नहीं हो रहा और हमने सबकी जांच करा ली है। और जांच का तो मैंने पहले आपको ही बता दिया कि जांच का क्या हाल हुआ, सब फर्जी जांच की गई। अब यहाँ तो फर्जी काम चलता है, या दर्जी लोग भी फर्जी वो बना देते हैं क्या, पोशाक। उस पोशाक को आप पहन के दूसरे धर्म वाले बन के जा सकते हैं। तो इस सवाल का तो इससे ज्यादा जवाब नहीं हो सकता। नेक्स्ट। Thank you, sir, for answering the question.
सर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इन्हीं लाइंस पर ये क्वेश्चन है. सो सर द क्वेश्चन गोज लाइक, recently we saw in Uttarakhand and UP, as you mentioned, banning Kanwad Yatra amidst the pandemic situation, but Kerala government giving 3 days of relaxation for Eid celebrations. Still, a major part of media praised the Kerala model. Do you think giving rights to state governments for imposition of COVID restrictions is right? कुंभ मेले के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा है और ईद सेलिब्रेशंस की. हाँ, कुंभ की तो मैंने बात कर दी और कावड़ की भी बात कर दी. ईद की बात यह है कि हाँ, एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता. और ये जो सरकार बनी है केरल में, उनका मानना है कि धर्म के लोगों के बल्क में वोट हमें मिले तो हमें उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए, भले ही देश के हित. इससे आगे मैं क्या कहूं. देश के हित भाड़ में जाएं. Thank you, sir, for the detailed answer. Now we move on to the next question. Rumor and misinformation in this time has been rampant. People have believed in different home remedies or fear regarding vaccination. This has indeed increased many challenges for the government. How has government countered rumors and misinformation in social media and WhatsApp? ये रूमर और मिसकंसेप्शन वाली बात जो है, पीआईबी के पास एक फैक्ट चेकिंग सिस्टम है. आप उन्हें लिखें तो वो आपको बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है. और दूसरी बात यह है कि अफवाह, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. जब सच निकलता है ना, उससे पहले झूठ आधी दुनिया में फैल जाता है. अफवाह आधी दुनिया में फैल जाती है. सच की गति कम है, झूठ की गति रॉकेट वाली है. और कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो अफवाह पे काबू पा सके. ये तो आप लोगों को विश्वास में ले सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सरकार नहीं कर सकती. ये अफवाहों से रॉयट्स हो जाते हैं. लेकिन अब जहां अफवाह फैलती है तो कुछ तो राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना चाहिए कि कितना नुकसान होने वाला है हमारी व्यवस्था को, हमारे संविधान को, हमारे सद्भाव को, हमारे सहयोग को. वो नहीं किया जाता, क्योंकि अगर राजनीतिक दल आपस में मिल जाएंगे तो वे राजनीति कैसे करेंगे. सवाल तो राजनीति का है. राजनीति की सीढ़ियों पर चढ़कर वो सत्ता पाते हैं. वो उन सीढ़ियों को काटना नहीं चाहते. नेक्स्ट. थैंक यू सर, खुला आंसर देने के लिए. थैंक यू सो मच सर. एक और क्वेश्चन है सर मेरे पास. आंसर भी आपके पास है? क्वेश्चन आपने कहा एक क्वेश्चन है, आंसर मेरे पास. मैंने कहा मैं क्या जहमत उठाऊंगा. सॉरी सर, आई मीन क्वेश्चन. नहीं ठीक है. आप तो अंतरिक्ष से बोल रहे हैं ना, कोई बात नहीं. Yes, sir. The question goes, there is also a growing fear regarding the third wave, but nothing verified. So how are we trying to map the third wave? And ये वेवों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? किसका? वेव का. अच्छा, ऐसा है, मेरे से ही मिस हो गया. मैंने थर्ड फेज की बात नहीं की, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं. हालांकि मेरे जहन में था, लेकिन थर्ड फेज अगर हम सावधान रहेंगे, 100% सावधान रहेंगे, तो थर्ड फेज नहीं आ सकती. लेकिन जिस तरह लोगों की हरकतें हैं, करतूतें हैं, ये दोनों शब्द बहुत खराब हैं, हरकतें और करतूतें, तो उससे आने की आशंका हो सकती है. पहले कहा जाता था कि थर्ड फेज आएगी तो बच्चों को ज्यादा नुकसान होगा. अब कहा जा रहा है नहीं, बच्चों को ये छुएगी नहीं. खैर, थर्ड फेज अगर आएगी और वो सीमित हो
उसको काबू किया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वो थर्ड फेज की तैयारी करें। कई राज्य सरकारों ने बच्चों के लिए अलग वार्ड बनवाने की शुरुआत की है और प्रधानमंत्री के केयर फंड से राशि दी गई। कोई चाहेगा नहीं थर्ड फेज आए, थर्ड वेव आए। जैसे मैं कहा ये कोरोना तो स्वाभिमानी है, हम गलती करेंगे तो वो आएगा, हमें गलती नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट। Thank you for the perceptive answer. We come to an end of the question answer round. अरे भाई आप लोग भी एक एक सवाल कर दो, क्या फर्क पड़ता है? एक अंतरिक्ष कर दे, एक आप कर दीजिए। मैंने आपका नाम भूल गया। चैतन्य। चलो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो। सर मेरे पास एक स्टैट था सर, वो आपके साथ डिस्कस करना था, अगर आपकी माइक पास में रखो अपने। सर मेरे पास एक स्टैट था, मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ, अगर आपकी अनुमति हो सर। हाँ कीजिए ना। जी सर, जैसा आपने बोला कि हमारा कोविड का मैनेजमेंट। अच्छा, मैं तो ब्लैक आउट हूँ ना। हाँ सर, हाँ सर, मैं बिल्कुल ब्लैक आउट हूँ। हाँ सर, आप करिए। जी। तो मेरा सवाल इस बेस पे था कि हमारी कोविड मैनेजमेंट को काफ़ी वेस्टर्न मीडिया ने और अपनी मीडिया ने भी काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज किया। बट देन आई केम अक्रॉस दिस स्टार्ट जिसमें क्या आ जा रहा था कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन मिला करके 134 करोड़ है, और वो 73 कंट्री है, 73 कंट्रीज है वो मिल करके, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। तो वहाँ पे 73 प्राइम मिनिस्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, और वहाँ के केसेस हैं 8.87 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन है 135 करोड़, पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से 1 करोड़ ज्यादा, और हमारे पास है एक प्रधानमंत्री, और हमारे केस है 2 करोड़ इन कंपैरिजन टू 8.87 करोड़ ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो आपका इस पे क्या कहना है कि मतलब वाज आवर मैनेजमेंट फॉल्टी या हमें ओवर? नहीं, हमारी मैनेजमेंट फॉल्टी होती अगर होती तो हालत क्या होते। अब आप देखिए कि पर मिलियन पर हमारे केसेस कम हैं, पर मिलियन पे हमारी डेथ रेट कम है, पर मिलियन पे हमारी रिकवरी रेट ज्यादा है, और मेरे ख्याल 33 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले 2 ही देश होंगे, एक अमेरिका या एक आधा और। हमने 138 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में इसको ये हालत नहीं होने दी कि लोगों को ये महसूस हो कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार जागती रही, सरकार काम करती रही, सरकार बचाव करती रही, और सरकार ऐसी ताकतों से भी निपटती रही जो अफवाह फैलाते थे, जो कहते थे कि मास्क लगाने से मौत हो जाएगी, वैक्सीन लगवाने से शरीर, अब वो वैक्सीन लगाने से कहते थे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ऐसी भी स्थिति आई, तब भी सरकार ने उसको संभाला। अगर सरकार अपने प्रयास में 2% भी कमी ला देती तो यहाँ हालत खराब हो जाती। ठीक है। और Thank you so much, sir, for this answer, for the perceptive answer. Now we come to the question answer end round. So we now welcome Professor Siddharth Mishra for his concluding remarks. Professor Siddharth Mishra is a print media journalist, TV panelist, Satpal and knows me pretty author. well. Satpal ji knows me pretty well. He has suffered me for 20 years. So सिद्धार्थ जी मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। ये मेरी रग रग जानते हैं, मैं उनकी नस नस जानता हूँ। सतपाल जी थैंक यू। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, अब आपको बोलना नहीं है तो चेहरा देख सकते हैं। So, नहीं, लोग भूल जाएंगे ना चेहरा मेरा। तो सतपाल जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग कम टुडे। और मेरे ख्याल से कोरोना के कहर के बीच में हम लोग अभी भी रह रहे हैं, जी रहे हैं,
और तरह तरह की कोरोना के नाम पे तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। कई लोग कोरोना वॉरियर डिक्लेयर हो रहे हैं, कई लोग को कोरोना इनाम मिल रहा है, कई लोगों को कई चीज़ें मिल रही हैं। और इस बीच में मैं एक कोरोना वॉरियर को जानता था जिसने 20-20 घंटे काम किया at the on the onset of corona wave 1 and wave 2, and even when during wave 1 he was taken ill, घर पे रहकर भी इन्होंने काम किया। और जो जिस समय कोरोना आया देश में, और सरकार और रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, गवर्नमेंट होती है रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो गवर्नमेंट के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। और उस समय जो एक मीडिया टीम का जो रोल होता है कि सारा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, जोड़ना, उसको तैयार करना, तो वो कैसे किया गया वो आज आप लोगों को सतपाल जी के परिभाषण में नजर आया होगा कि पूरी फ्रॉम इति से अंत तक, फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, पूरी सरकार की क्या मीडिया पॉलिसी रही, सरकार ने कैसे इंफॉर्मेशन एकत्र किया, कैसे इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट किया, ये सारी चीजें इतनी डिटेल में उन्होंने बताई। इतना भी बताया कि बाकी के लोग कोविड कहते हैं, कुछ लोग सार्स वायरस कहते हैं और हम कोरोना कहते हैं। अपने अपने देश की सहूलियत है, जैसे अपने अपने देश की सहूलियत है कोरोना के बारे में बोलने में, वैसे अपने अपने देश का तरीका भी रहा है कोरोना को हैंडल करने में। और जैसे मैं हमेशा, मेरा मानना है, मेरा कहना है कि कस्टमाइज्ड, अगर आप जापान की गाड़ी सीधे इंडिया में उतार देते सुजुकी तो फेल कर जाती, उसको मारुति से कोलैबोरेट किया तो वो चली। तो कस्टमाइजेशन टू इंडियन सिचुएशंस एंड कंडीशंस, बिकॉज इंडिया इज ए वेरी वेरी डिफरेंट कंट्री। सबसे बड़ा तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन, जिसके बारे में इसी मारुति के नाम को लेके मनीराम बागड़ी खेल गए। मनीराम बागड़ी ने कहा मैं गुड़गांव गया। इसको मैं पहले तो हम लोग वी आर अ डिफरेंट कंट्री एंड आवर गवर्नमेंट डिड नॉट रियली नीड टू लुक अप टू any of the other countries for COVID management. We had to, because nobody could have given us a model. We had to develop our own model. Nobody could have given us a model. और जैसे भी हुआ, आपने देखा कि हम लोगों ने कोरोना के टाइम में हम लोग के डिफरेंट मॉडल्स, छोटे छोटे शहरों के मॉडल्स, राजस्थान का एक भीलवाड़ा मॉडल, तो ये मॉडल, ये सारे मॉडल्स आए जिससे हम लोगों ने धारावी मॉडल, ये मॉडल, जैसे कि मुंडका के पास का गांव का मॉडल, अभी वो एक T3 मॉडल है, T3 मॉडल यूपी का T3 मॉडल। इट इज नॉट टर्मिनल 3, इट इज ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड टेस्टिंग, T3 मॉडल। ये सारे मॉडल हम लोगों ने ही अपने पास बनाए और इजाद किया। मैं कुछ बातें जो मुझे लगता है, जो कि मैं कोरोना के बारे में, तो इन्होंने इतना इंफॉर्मेशन दे दिया कि रियली आई डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग टू दैट, और इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन शायद आपको वेबसाइट्स पे भी नहीं मिलेगी। तो एक तो पहला लेसन इसके अंदर ये है, जो कंटेंट राइटिंग कभी आगे चल करके करना चाहते हो, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटर अगर बनना चाहते हो, तो उसमें इस तरह की तैयारी होनी चाहिए कंटेंट लिखने के लिए, इस तरह की तैयारी होनी चाहिए कंटेंट, द प्योरिटी ऑफ कंटेंट, ना बिना कोई लाग भाग, ना कोई ड्रामा, ना कोई ये, सीधे सब पाठ शब्दों में कंटेंट। तो दिस इज व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। डेटा जर्नलिज्म की आप बात करते हैं, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा एम्प्लीफिकेशन, दिस ऑल इज बेस्ड ऑन कंटेंट एंड यू मस्ट हैव दैट कंटेंट। वो सतपाल जी ने एक हमें बताया कि कंटेंट राइटिंग का, कंटेंट इज हाउ इम्पोर्टेंट फॉर सच सिचुएशन लाइक दिस, स्पेशली पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, जबकि एवरीबडी इज लुकिंग अप टू कंटेंट, टू सॉलिड एंड ट्रू कंटेंट। वो इन्होंने इस चीज को बताया। दूसरा ये जो एक दो तीन चीजें उन्होंने बताई, एक है नेशनल मीडिया सेंटर का इन्होंने नाम लिया। नेशनल मीडिया सेंटर को आपको जानना जरूरी है। आप कभी रायसीना रोड पे जाएं तो आप सब जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं, ले मेरिडियन के बाद नेशनल मीडिया सेंटर आता है। ले मेरिडियन और प्रेस क्लब के बीच में नेशनल मीडिया सेंटर इज द हब ऑफ मीडिया एक्टिविटीज ऑफ दिस कंट्री। आप उनको विजिट करा सकते हैं जी, विजिट करा सकते हैं। हाँ, आप अपनी विजिट करवा सकते हैं। That is the hub of government activities. The PIB, Press Information Bureau, sits there. The principal information officer of the government
वो वहाँ बैठते हैं, मीडिया वालों के लिए वहाँ वर्क प्लेस है, मीडिया के वहाँ ब्रीफिंग होती है, गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पर मिलता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ऑफिस है, उसको नेशनल मीडिया सेंटर कहते हैं। तो एक तो इनफैक्ट जैसे सतपाल जी ने कहा कि अगर प्रिंट के लोग, पहले आप लोग अखबार के प्रेसों की विजिट कराते थे, तो एक बार देखिए नेशनल मीडिया सेंटर का भी विजिट कराइए। दे शुड नो व्हाट नेशनल मीडिया सेंटर इज। ये 4-5-7 साल पहले बन के तैयार हुआ है, एंड इट्स ए टोटली नहीं, मनमोहन सिंह जी ने किया था। हाईली व्हाट यू कॉल automated center. Any journalist, PIB accredited journalist can walk in there, file a copy, transmit photographs, gather information, accreditation, everything in one place. So National Media Center is today the biggest hub of all सारे हिंदुस्तान के बड़ा से बड़ा जर्नलिस्ट, वो अर्नब गोस्वामी हो या राजदीप सरदेसाई हो, उसे भी नेशनल मीडिया सेंटर तो साल में एक बार जाना ही पड़ता है अपना कार्ड कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो रविश कुमार सेंटर, यू मस्ट विजिट नेशनल मीडिया सेंटर। दूसरी बात इन्होंने कही सेक्रेटरी की, एक जो हेल्थ सेक्रेटरी की बात कही, देखिए ये एक थोड़ी हम लोग के लोग बहुत, सतपाल जी शायद सरकार के आदमी से इस बात को इतना नहीं कह पाएंगे, मैं कहना चाह रहा हूँ, इट इज नॉट पॉलिटिशियन वो कैमरा फुटेज गैदर करने के लिए आ जाते हैं कैमरे के सामने, लेकिन बेसिकली पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ये ब्यूरोक्रेसी का काम होता है और इसके बारे में ब्यूरोक्रेसी ही ब्रीफ कर सकती है। दे आर द बेस्ट प्लेस पर्सन टू डू दैट ब्रीफिंग। सो इसीलिए आई थिंक इट वाज ए राइट डिसीजन एज पार्ट ऑफ मीडिया पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिप्लॉय द सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री टू ब्रीफ मीडिया ऑन ए डेली बेसिस ऑन दिस। यस, कभी कोई बड़ी चीज हुई तो प्रधानमंत्री ने भी ब्रीफ किया, कभी हेल्थ मिनिस्टर ने ब्रीफ किया, लेकिन डेली ब्रीफिंग जो थी, डेली में आना ठीक ब्रीफिंग जो है सो हेल्थ सेक्रेटरी कर रहे थे। और आपके जहन में अगर ये बात आई हो कि हेल्थ सेक्रेटरी क्यों कर रहे थे, तो दिस इज द रीजन फॉर इट। तो तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, कि हम लोग ऐसे भी अपने बातचीत में, हमारे पिछले साल FDP में भी ये बात हुई, सरफेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको WHO ने नाम दिया है इन्फोडेमिक। इस पैंडेमिक में इतना इंफॉर्मेशन आ गया और हमें ये नहीं पता कि सही इंफॉर्मेशन क्या है और गलत इंफॉर्मेशन, फ्लड आ गया ना, तो वो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसको गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ये हुई चैलेंज रहा गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की मीडिया एजेंसीज के लिए, कि उसमें से सही इंफॉर्मेशन को निकाल करके पब्लिक डोमेन में डालना। कई बार जैसे कि, और कई इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट ने विथड्रॉ किया, कई इंफॉर्मेशन को, और जैसे कि as he mentioned, अपने टॉक में उन्होंने मेंशन किया कि there were several people without being part of the government, they started speaking on behalf of the government because they belong to that political party. गौमूत्र का सेवन कीजिए, तुलसी का जाप कीजिए, पापड़ बनाइए, ये चीजें कीजिए, वो चीजें कीजिए। तो ये चीजें जो है सो कहीं पर प्रधानमंत्री का भी नाम आया कि थाली बजाइए, ये कीजिए। तो लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब हमें there was so much of information, surfeit of information, उसके अंदर to sift out the right information and give you the correct information to the media became one of the biggest challenges of the media team, of which Mr. Satpal was part of it, not only part of it, on a very, very senior position of that team. Then, as he rightly mentioned, they were faced with a very, very aggressive media. You see, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट, तो अखबार जब ये पैंडेमिक हुआ तो आधे अखबार में तो हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट नाम का कोई जंतु एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं साहब, और हेल्थ मिनिस्ट्री के ब्रीफिंग से बिरला ही कोई जाता था। तो अचानक हेल्थ मिनिस्ट्री बिकेम सो इम्पोर्टेंट एंड मीडिया बिकेम सो एग्रेसिव टू गैदर इंफॉर्मेशन। सुबह सुबह नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर, अगर आप वो रायसीना रोड पे जाते तो पूरी दिल्ली में सन्नाटा होता था, लेकिन रायसीना रोड के बाहर ट्रैफिक जैम, ये सारे ये ओबी वैन्स और ये टीवी वाले और ये सब वहाँ होते थे फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। सो द गवर्नमेंट्स मीडिया डिपार्टमेंट हैड टू बैटल अ very, very aggressive media at this point of time. Largely media has a perception about a thing. अगर मैं 20 साल से 25 साल से दिल्ली के बारे में लिख रहा हूँ, तो मुझे दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी है, मैं उसको जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट दे रही है उसको मैं उस कसौटी पर तराश सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो कोविड के बारे में किसी कोई जानकारी नहीं थी,
नई तो चीज की जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन व्हिच वाज कमिंग टू देम, and they were continuously battling the information which was coming on the internet, unverified information. So verified information, unverified information की भी उन्होंने बात बताई, misinformation जो की भी बात बताई, unverified information, verified information, misinformation, जानबूझ करके फैलाई गई बातें, जानबूझ की खास करके जो ये जो डाउन ट्रॉडन के जो हल्के होते हैं, जहाँ पर जो या वैक्सीन लोगे तो आपकी मतलब यू विल लूज योर मैनलीनेस, और जो होगा वो होगा, आपकी जनरेशन नहीं चलेंगे, तो इस तरह के डिसइंफॉर्मेशन, उसको भी काउंटर करने का जो एक चैलेंज था। ये जो आज का एक जो मॉडर्न कंसेप्ट इन्होंने जो आज के मीडिया में पिछले 5 साल 10 साल का जो एक कंसेप्ट है जिसके बारे में इन्होंने मेंशन किया, एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली कोविड, इट इज नाउ पार्ट ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टीज डिस्पेंसेशन एंड एवरी कलेक्टर्स डिस्पेंसेशन। यू सी हाउ इंपॉर्टेंट मीडिया हैज बिकम। पहले एक जिले के अंदर एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता था या मिनिस्ट्री होता था, वो सूखा पड़ा रहता था एक कोने में, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जाता नहीं था उसके रूम में, जाता नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, कलेक्टर से मिले चले आए। आज के तारीख में व्हेन वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड of so much of information in media, information officers have become very very important, और वह सारे जिले के अंदर आज की तारीख में जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो एक वॉर रूम रन कर रहा है कि भाई किसी कलेक्टर साहब के बारे में कोई चल गया एक वीडियो, फटाक से एक वीडियो चल गया, कलेक्टर साहब ने 2 थप्पड़ लगा दिया, किसी को ये कर दिया, और वह कलेक्टर निरंकुश है तो कलेक्टर ह्यूमन राइट्स का वायलेटर है तो कलेक्टर ये है वो। अब वहां का इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज टू रन ए वॉर रूम टू मॉनिटर सच न्यूज, काउंटर सच न्यूज, गिव राइट इंफॉर्मेशन। तो आप ये समझिए कि जो वॉर रूम का जो कंसेप्ट है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट, जो मीडिया का क्राइसिस मैनेजमेंट, जब आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे उसमें भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बात होती है। तो गवर्नमेंट को जो अपने इमेज का क्राइसिस मैनेजमेंट जो करना था, वो क्राइसिस मैनेजमेंट ये वॉर रूम्स में होता है। और ये वॉर रूम का कंसेप्ट जो है, इट्स ए न्यू कंसेप्ट, 4-5 साल 6 साल से 8 साल से है, बट इट इज नाउ टुडे एग्जिस्टेंट इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। भैया पॉलिटिकल पार्टीज बनाती थी, अब मीडिया को बनाना पड़ा। सतपाल जी ने बड़े बारीकी से हर एक डिसीजन के पीछे गवर्नमेंट की लॉजिक क्या थी, जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसके पीछे उसकी लॉजिक क्या थी वो भी बताया। हालांकि बैंडविड्थ खराब था, सतपाल जी की आवाज टूट टूट कर आ रही थी, लेकिन इनके बोलने के लहजे से और इनके बताने के लहजे से ये पता लग रहा था कि ही इज ए ट्रेन्ड रेडियो अनाउंसर, और 30 साल से ये रेडियो पे बोलते रहे हैं, तो इनके बात में, ठहराव में, बात करने में एक वो चीज नजर आ रही थी। वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में बहुत चर्चा हुआ कि हमने वैक्सीन यहाँ भेज दिया, हमने वैक्सीन वहां भेज दिया, हमने क्या किया वैक्सीन के साथ, नहीं किया। गवर्नमेंट वाज फॉल्टेड फॉर इट एंड राइटली सो आल्सो, बट सतपाल जी ने बताया कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में। तो ये एक टॉपिक और इन्होंने कवर किया अपने टॉक में। लैब इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ, फेनोमेनल ग्रोथ लैब इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो एक डॉक्टर, वो एक वहां एक लैब था और एक डॉक्टर डांग का क्लिनिक को प्राइवेट सेक्टर में पहले बार लाइसेंस मिला। और आज तो आपके फोन पे लगातार आते रहते हैं मैसेजेस, ये करा लो, आरटीपीसीआर टेस्ट करा लो, इतने पैसे में इतना डिस्काउंट है, ये है वो है। सो यू सी द वे वी आर एबल टू क्रिएट, सो एंड यू कैन गो बैक एंड चेक, नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ लैब इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच वी हैव क्रिएटेड। The number of labs that we have created in this country in past 1 year, no other country has created. और इतने हमने कुछ महीने में हमने 21 लाख बेड खड़े कर दिए जी, 21 लाख लैब खड़े कर दिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट की डूइंग नहीं है, ये प्राइवेट एंड गवर्नमेंट पार्टनरशिप है। गवर्नमेंट ने राइट समय पर लाइसेंस लोगों को देती रही, और फिर लोगों ने, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, रोज टू द चैलेंज। और कई लोगों ने गवर्नमेंट के ट्रस्ट को मिसयूज भी किया, जो हमारा हरिद्वार वाला केस जो तो इंडिया में जब भी हम एक तो लैब हमारे नजदीक में जो पकड़ी गई है, जब भी हम हिंदुस्तान में किसी भी चीज को, किसी भी प्रोजेक्ट को कंसीव करते हैं, तो उसके अंदर वो 15% का जो कट ऑफ मार्जिन जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें करप्शन का कितना चांस है,
कितना फुल प्रूफ सिस्टम है। तो ये आपको दिखा जो एक बात पे, जो कि इनके प्रोबब्ली परव्यू के बाहर ये बात थी, कि करप्शन का भी हमें नए नए नमूने देखने को इस पिछले 1 साल में कोविड काल में मिला। बीट लैब टेस्टिंग, बीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बीट ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेमडेसिविर। गवर्नमेंट का ये क्रिटिसिज्म हो सकता है कि गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी, व्हाई डिडंट गवर्नमेंट प्रिवेंट इट? गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सपेक्ट कि जिसको हम लाइसेंस दे रहे हैं, जिसको हम ट्रस्ट कर रहे हैं सिचुएशन में, दे विल डू सो, दे वुड बी सो अनएथिकल अबाउट इट। एंड आज की तारीख एक बात तो जरूर है, लोगों का और गवर्नमेंट को करना भी चाहिए कि जितने अस्पतालों ने 45,000 के बेचे रेमडेसिविर, जितने डॉक्टरों ने दुनिया भर के पैसे चार्ज किए, इन सबका कहीं ना कहीं एक, एंड पीपल हैव बीन टोल्ड दैट दे शुड कम फॉरवर्ड एंड रिवील द misery that they went through if they want to, because corruption can wreck the country, and that is, and one of the main reasons for second wave being so cruel on us was the corruption had a very important quotient into it. Then he mentioned to you about PPE kits. अब वो मैंने देखा हमारे सोसाइटी में today RW and the societies are distributing to residents, complimentary N95 masks and PPE kits. जबकि आज से 1 साल पहले आप क्या समय याद कीजिए, N95 मास्क होना किसी के पास बहुत बड़ा वो स्टेटस सिंबल होता था, जैसे कि उसने टेसॉट की घड़ी पहन रखी हो या मोबला का पेन लगा रखा हो, इस तरह का N95 मास्क था। आज N95 मास्क कॉम्प्लीमेंट्रीज RWS डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, गवर्नमेंट इन लोगों के मार्फत डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। देयर इज अ नेटवर्क दैट गवर्नमेंट NGOs के थ्रू, RWS के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो जैसे सतपाल जी ने, एंड दिस इज आल्सो रिवीलिंग, सतपाल जी मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो आज का लेक्चर था, कोई लड़का अगर UPSC की तैयारी कर रहा है तो कोविड में इतना इंफॉर्मेशन एक साथ शायद ही मिल पाता किसी को। इनमें से कोई नहीं था करने वाला। ये तो अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं सतपाल जी, अभी तो टाइम लगेगा। कोविन, हम सबने कोविन के बारे में सोचा। अच्छा, आपकी जनरेशन जो है, क्या वो एक हॉट शॉट न्यूज, कौन सा शॉर्ट न्यूज, शॉर्ट न्यूज जो 45, हाँ यस अंतरिक्ष, व्हाट इज दैट न्यूज? इन शॉर्ट न्यूज। अब इन शॉर्ट न्यूज में ये चीजें कहाँ आएंगी, आपको पता लगेगी कि कोविन ऐप, कोविन डैशबोर्ड क्या है, कोविन ऐप क्या है, उसके पीछे फंक्शनिंग क्या है, उसके पीछे लोग क्या है। तो ये जो डेटा एम्प्लीफिकेशन, लॉन्ग हैंड जानकारी, वो जो चीजें ये मिली कोविन के बारे में मिली, इतनी जानकारी भाई मुझे तो नहीं पता था भाई। एंड आई थिंक आई एम प्रीटी अवेयर पर्सन, मैं चीजों पर नजर रखता हूँ, लेकिन इतना डिटेल इंफॉर्मेशन। विलेज सर्वेलांस की आपने बात करी, एंड आई मस्ट टेल वन थिंग, आई मस्ट कन्फेस वन थिंग, जो सतपाल जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कि जो सर्वेलांस विलेजेस ने करी है वो हमारे शहरों में नहीं हुई कोविड के मामले में। विलेजेस में तो आज भी लोग मास्क नहीं डालते। यूपी, उत्तर प्रदेश में, या और जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े शहर में जहां पर कि सेकंड वेव का पहला वेव वहीं पर आया, बिकॉज ऑफ दोज पीपल कमिंग बैक फ्रॉम कुंभ, दिस थिंग, एंड हाउ दे वर एबल टू मैनेज इट वाज दिस, दे ऑल बिल्ड आइसोलेशन हट्स आउटसाइड द विलेजेस। गांव के प्रधान ने और गांव के लोगों ने बनाया और वो चीजें वहां पर की गई। तो वो हमें एक चीज, और एक हमारा सोशल अवेयरनेस शो करता है कि हमारे गांव के लोग ज्यादा सजग रहे इस बारे में, रादर आवर पीपल इन द अर्बन एरियाज, क्योंकि वो ज्यादा जानकार थे अर्बन एरिया के लोग, तो उन्होंने गवर्नमेंट की बात को शायद नहीं मानी, और ये इसलिए ज्यादा फेस किया इन चीजों। और एक तो इन्होंने और ये सटायर लिखते हैं, इनका एक सटायर का कॉलम आता है, तो उन्होंने अपने सटायर की बात भी रख दी कि कोरोना स्वाभिमानी है। अब कोरोना स्वाभिमानी है, बिना जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे वो आएगा नहीं आपके यहाँ। तो ठीक है, आप दरवाजा खोलो और स्वागत करो कोरोना का। मेरे ख्याल से देयर वाज नो बेटर वे दैट यू कुड हैव प्रेजेंटेड सटायर के तरीके से जो हमने बात कही। जो एक केरला मॉडल पे बात अभी चल रही थी, और केरला मॉडल, और किसी ने यहाँ लिखा भी है, मे बी सतपाल सर इज नॉट एंटी मोदी, प्लीज समवन टेल दिस टू रवीश कुमार। चलो ठीक है, बात ये है कि
सतपाल जी के बारे में एक बात मैं बता दूं, सतपाल जी इज ए प्रोफेशनल कम्युनिकेटर। आपको जानकर के सतपाल जी की उम्र 70 पार है। इनको रिटायर किए हुए 10 साल से, और उसके बाद भी कोरोना के समय में गवर्नमेंट ने इनकी सर्विसेज ली। वो इस करके नहीं ली क्योंकि वो किसी आरएसएस के प्रचारक के साथ ये काम करते। और इस दौरान में खाली नहीं रहा, गवर्नमेंट की सर्विस की इनका एक रिकॉर्ड था। 15 साल ये शीला दीक्षित के साथ काम किए, उनके इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये मुरली मनोहर जोशी के इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, साहब सिंह वर्मा के इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, सुषमा जी, विजय गोयल के, सुषमा जी के सुषमा इंफॉर्मेशन जी के। ऑफिसर थे। तो एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर जो होता है उसकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होती, उसकी आइडियोलॉजी होती है राइट एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को आगे करना, which Satpal ji did very, and he was very honest in his remarks also here today, despite having been part of the government establishment for last so many years and having seen work with so many personalities. But you know, he made it a point कि जो it's the right of his citizens to get the correct unadulterated information. ये केरला मॉडल अच्छा है या ये मॉडल अच्छा है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम है, वो बता के निकलना। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो लोग हु आर पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, हु आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम, पॉलिटिशियंस में कम एंड गो, बट दिस पीपल आर गोइंग टू रिमेन देयर। ये लोग का जो धर्म है वो ये है कि वो राइट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए, एंड दैट इज व्हाट वाज टुडेज सतपाल जी's क्लास इन दिस थिंग व्हाट यू कॉल टुडे लेक्चर वाज ऑल अबाउट। और उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में एक बात कही। सो अंतरिक्ष, मैं भी आपको बात कहना चाहता हूं कि अंतरिक्ष से आवाज आ रही है, तो आकाशवाणी में काम करते हैं ये, तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी है। और ये 26 जनवरी के आसपास जब ठंड बहुत पड़ जाती है, जब सारे कैजुअल अनाउंसर्स आना बंद कर देते हैं और न्यूज राइटर्स, तो सतपाल जी उस समय 3 बजे सुबह घर से निकल करके जाते हैं वहां पर, ऑल इंडिया रेडियो में जाते हैं। तो दैट इज हिज पैशन टू वर्क। और अंतरिक्ष, आपकी आवाज अंतरिक्ष से इसलिए आ रही थी कि कई बार स्टाइलिस्टिक्स में आपने माइक को अपने हाथ से दूर कर दिया था। तो जब इस तरह के सिस्टम में हो तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि माइक आपके बिल्कुल पास हो, जिससे कि आप कम्युनिकेट कर पाए। माइक पास में हो, ना हो, डिस्टेंस पे हो। हाँ, अगर मुंह में होगा तो बिल्कुल सही जाएगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट सतपाल जी कि अगर कभी ये लॉकडाउन टूटे एंड इफ यू कैन यूज योर गुड ऑफिसेस, 5-10 बच्चों को ही एक बार आप नेशनल मीडिया सेंटर दिखा दें, ऑल इंडिया रेडियो दिखा दें, अपने साथ कंडक्टेड टूर करा दें, जैसे टूरिस्टों का कंडक्टेड टूर होता है। वी विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सतपाल जी ने 1980 से ऑल इंडिया रेडियो के जितने इलेक्शन टाइम में बुलेटिन हुए सब में पार्टिसिपेट किया इन्होंने। ये इनकी एक इलेक्शन ड्यूटी लगती थी मेरी, काउंटिंग वाले दिन वहां ड्यूटी लगती थी। तब मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता था। ठीक है, एक पैशन था ना। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग भी हुआ है ना आपका? हाँ, मिलेगा सतपाल जी रिकॉर्डिंग। वो अभी आई थी, मुझे इशारा कर गई कि रिकॉर्डिंग मिलेगी सतपाल जी आप। अच्छा, तो सबका शुक्रिया। ये लोग कुछ बोलेंगे, सिद्धार्थ जी का, मनोज जी का। सतपाल जी भी कुछ बोलेंगे ये लोग, तब आप शुक्रिया दीजिएगा। अच्छा। थैंक यू सर। पहले हमें शुक्रिया करना है। सो थैंक यू सो मच सर, सिद्धार्थ सर। अंतरिक्ष बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने कहा अंतरिक्ष से आवाज आ रही है। नहीं सर, नहीं सर, इट वाज माय प्रिविलेज, आपको मेरा नाम याद था। सर, थैंक यू सर। So again sir, Siddharth sir, thank you so much for your remarks, and thank you so much Satpal sir. Now we would like to extend a vote of thanks to all of those who made this event possible. We thank the management of WIPS for giving us this platform to engage with industry experts. We thank our guiding light, our mentors, Siddharth sir and Charu ma'am, all the teacher coordinators and all the trainees. We hope you had a fruitful session. We now conclude the first session of day 1 of Summer Internship Program 2021. It's a request for all the trainees to kindly fill up the feedback form for the session. Hope you had a good one, and I hope to see you tomorrow at the same time. Thank you.